गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा वनचारी तेरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 श्री श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की कलियुग पावन चैतन्य महाप्रभु की जय श्री त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय श्री गोलोकेरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की सामवेद गौर भक्तवृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to Sri Guru and Gauranga Hare Krishna
Hare Krishna. We are very fortunate that today we have with us His Grace Sudama Prabhu. Prabhuji, after graduation, he worked in Mather and Plant and Alpha Level Company. Both companies are in Pimpri Chinchwad, Pune. So he was working there for 10 years, where in 1992, he, Gaurang Prabhu, Radheshampu, they were staying same room and they were going for job and they were practicing Krishna consciousness. Later on, in 1993, uh, Prabhuji joined ISKCON Chowpatty, Shri Radha Gopinath Temple as full-time brahmachari. After joining, he traveled for 5 years in bus party, distributing Srila Prabhupada books all over India. Later on, for 5 years, he was also serving as a assistant head pujari, serving their lordship Shri Radha Gopinath ji. And after that, on instruction of spiritual master, he has been traveling in different parts of India and world, uh, giving Bhagavad Kathas and especially conducting seminars like Holy Name Seminar. Especially is famous for his classes which help devotees to improve their sadhana and their relationship with devotees all over India. He has been doing programs in Bhakti Rikshas, Namahattas, village programs, house programs, all different varieties of programs. And he also regularly travels to different countries also like Abu Dhabi, Sharjah, Dubai, Mauritius, South Africa, Malaysia, Nepal, other places, inspiring devotees in their Krishna consciousness. So we are very honored and very blessed that we have wonderful association of His Grace Sudama Prabhuji. Aribo. So let us welcome him to Shri Shri Nitai Gauranga ISKCON New Town Temple by loudly chanting 3 times. Bo. Aribo. Aribo. थैंक यू वेरी मच आचार्य रत्न प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा परम सौभाग्य है फिर से आप लोगों की सेवा में यहाँ पर आकर कुछ भगवान के नाम के बारे में बताने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो हम श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 62 श्लोक क्रमांक 26 से चर्चा करेंगे आज। भटा आवेदयाम चक्रु राजंस्ते दुहितुर्वयम् वेचिष्टितं लक्ष्यां कन्यया वेचिष्टितं लक्ष्यामा कन्यायाय कुलदूषणम् भटा आवेदया चक्रु राजंस्ते दुहितुर्वयम् वेचिष्टितं लक्ष्यामा कन्यायाय कुलदूषणम् भटा आवेदयाम चक्रु राजंस्ते दुहितुर्वयम् वेचिष्टितं लक्ष्याम कन्यायाय कुलदूषणम्।
माता जी तम ताम नहीं, कहाँ से शुरू है? भाटो भटा द फीमेल गार्ड्स आवेदयाम चक्रू announced, Rajan, O king, te your duhitu of the daughter, Vayam we, Vicheshritam improper behavior, Lakshayam have noted, Kanyaya of an unmarried girl, Kula the family, Dushanam besmirching. Translation purport by His Divine Grace, disciples of Srila Prabhupada. Translation. The female guards eventually noticed unmistakable symptoms of romantic involvement in Usha, who, having broken her maiden vow, was being enjoyed by the Yadu hero and showing us signs of conjugal happiness. The guards went to Banasur and told him, O king, we have detected in your daughter the kind of improper behavior that spoils the reputation of the young girl's family. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti has defined the word bataha as a female goddess, whereas Jiva Goswami defines it as anoechus and others. Grammatically, the word can function both ways. The gods fear that if Banasur found out about Usha's activities from some other source, he would severely punish them, and thus they personally inform him that his young daughter was no longer innocent. Om Ajnanatimurandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Ena Tasmai Sri Guruve Namah. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 तो कई लोगों की धारणा है कि मैं राधेश्याम प्रभु गौराम प्रभु एक साथ थे तो मैं भी उसी कैलिबर का आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो कई स्वतंत्र सैनिक जेल में थे। तो जेल में जितने भी स्वतंत्र सैनिक थे उनको रिहा किया गया, उसके साथ कई चोर लुचक्के भी थे, उनको भी रिहा किया गया। तो ऑटोमेटिकली वो भी स्वतंत्र वीर बन गए। ऐसे में एक केस हूँ। उनके साथ रहते रहते लोग गलत धारणा रखते हैं कि मैं भी IIT से हूँ, बहुत बड़ा स्पीकर हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उनके साथ रहते रहते वो जो डिग्री मिली है मुझे, जो भी पहचान मिली है, वो किसके समान है। जैसे कई स्वतंत्र वीर के साथ कई चोर लुटेरे थे, उनको स्वतंत्र वीर का सर्टिफिकेट मिला, इससे मुझे मिला है। लेकिन मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सेमिनार्स होते हैं हिंदी में होते हैं। कई लोग अपेक्षा करते हैं प्रभु जी इंग्लिश में बताए, तो हिंदी में हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है? क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में ज़्यादा। जो रिलिशमेंट होगी, हाँ चलेगा, ठीक है। तो आज का विषय है, अगले 2-3 दिन हम चर्चा करेंगे हरिनाम की मिठास। किया है हमने हरिनाम की मिठास? हरिनाम की मिठास ये टॉपिक हुआ है? हरिनाम की मिठास, स्वीटनेस ऑफ होलीनेस नहीं हुआ, ठीक है।
तो भगवान के नाम में कितनी मिठास है, ये विषय है। यहाँ पर जब भी क्लास होगा भागवत में, इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। तो श्लोक है चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 265। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 3 265 श्लोक नंबर। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदा, अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदा, अवतारी करेना प्रेम रस आस्वाद। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदा, अवतारी करेना प्रेम रस आस्वाद। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदा, अवतारी करेना प्रेम रस आस्वाद। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 265 265। बहुत ही सुंदर मधुर श्लोक है। भगवान इस भौतिक धरा पर क्यों आते हैं? अपना धाम छोड़कर, नंद यशोदा को, गैयों बछड़ों को छोड़कर, गोप गोपियों को छोड़कर, गोलोक धाम को छोड़कर क्यों आते हैं? ये बहुत ही मधुर श्लोक है जो बतलाता है भगवान के आने का प्रयोजन क्या है। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन। अन्य का मतलब क्या है? और किसी के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। अन्य में कौन कौन आ गए? शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, सारे विष्णु आ गए, सारे नारायण, सारे अवतार आ गए। सिर्फ और सिर्फ हम कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। 1.3.28 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कौन सा श्लोक है? हाँ, ए ते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में आते इसलिए 1 कैंटो 1 का मतलब क्या है? ब्रह्मा के एक दिन में आते। 1.3 का मतलब है तीसरे युग में आते हैं, द्वापर युग में। सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में आते हैं, इसलिए 1.3.28। और कौन से युग में आते हैं? 28th युग। तो इतना परिपूर्ण भागवत में भगवान के आने का जो श्लोक है 1.3.28। समझ गए? ब्रह्मा के एक दिन में, तीसरे युग में, 28वें युग में आते, इसका वर्णन यहां पर किया गया है। अन्य का कथा, और किसी के बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। आपने ब्रजेंद्र नंदन। तो कृष्णदास कविराज जीवात्मा का संबंध भगवान से जोड़ रहे। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण रे, कौन सा शब्द इस्तेमाल करके? आपने। भगवान हमारे हैं क्योंकि हम भगवान के हैं। हाँ, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए आपने ब्रजेंद्र नंदन, यहाँ पर शब्द बहुत सुंदर इस्तेमाल किया है जीव का भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए। संबंध ज्ञान बताया गया है। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन, अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वादन। अभी अवतारी का मतलब क्या है? 2 शब्द होते हैं, अवतार और अवतारी। अवतारी का मतलब क्या है? सारे अवतार आते हैं। क्योंकि भगवान एकमात्र अवतारी है, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है, इसका सबूत क्या है? क्योंकि बाकी सभी अवतार इनमें समाये हुए हैं। क्योंकि गोपाल का और कोई बिजनेस नहीं, काम धंधा नहीं। ब्रज में वो आते हैं सारे ब्रजवासियों को आनंद की कुंड में डुबोने के लिए। जैसे सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में गाते, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। है कि नहीं?
आनंद की कुंड में डुबोने के लिए आते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं? भक्त वत्सलता के माध्यम से। भक्त वत्सलता का मतलब है खुद को आनंद देना और अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देना, और हम जैसे कलयुग के नमूनों को अपनी ओर खींचना। इसको कहते हैं भक्त वत्सलता। और इस भक्त वत्सलता के माध्यम से भगवान सारे जीवों को अपनी ओर खींच लेते, क्योंकि भगवान की बाल लीला सबसे मधुर है। जीवों में वो तड़प पैदा करती है, वो लालायिता, वो उत्कंठता पैदा करती है, मुझे आध्यात्मिक जगत में लौटना चाहिए। क्योंकि बाल लीला किसके समान है? ट्रेलर के समान है, झांकी के समान है। कहां बताया? दामोदर अष्टक में आख्यापयंतम, क्या श्लोक है? इति दृक् सोल्लाभि, आख्यापयंतम नहीं, नहीं, आख्यापयन किस लाइन में आती है शब्द? सघोषम, बरोबर। स्वघोषम, स्वघोषम मैंने ही हैज कम टू डेमोन्स्ट्रेट। स्वघोषम, घोषित करने के लिए आए अपनी बाल लीला। किसके समान है? एक ट्रेलर के समान है, झांकी के समान है। जैसे कोई पिक्चर आती है तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं? ट्रेलर दिखाते हैं। बाहुबली जब आया 2 साल इंटरनेट में छा गया था, बाहुबली बाहुबली बाहुबली, लोग पागल हो गए थे। भले 1000 रुपए टिकट हो, हम पहले दिन पहला शो देखेंगे। ऐसे वो लाला इतना उत्कंठ निर्माण करती है भगवान की बाल लीला। तो ट्रेलर में, झांकी में क्या दिखाते हैं? सबसे बढ़िया शॉट दिखाते हैं पिक्चर की। इतने बढ़िया शॉट की लोग पागल होना चाहिए कि किसी भी हालत में मुझे पिक्चर देखना ही पड़ेगा। तो भगवान अपनी बाल लीलाओं को किसके समान प्रस्तुत करते हैं? झांकी के समान। झांकी दिखा के कहते हैं ये तो झांकी थी, पूरा पिक्चर बाकी है। और जीवात्मा तरसता है कि पिक्चर, ट्रेलर इतना अच्छा है तो पिक्चर कितना बढ़िया होगा, और मुझे वो देखना चाहिए, देखना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं इस भौतिक जगत में नहीं, आपको आध्यात्मिक जगत में आना होगा। इस छोटे थिएटर में नहीं, बड़े थिएटर में होगा अगली लीला। इसलिए भगवान ये लाला इतना उत्पन्न करते जीवात्मा में, भगवत धाम की ओर खींच लेते हैं। इसलिए ये बहुत ही सुंदर लीला करने के लिए भगवान आते। अवतारी कृष्ण, अवतार यानी जिनसे सारे अवतार थे। तो भगवान स्वयं भगवान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो ब्रज में ये लीला करने के लिए आते हैं, जीवों को आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर, स्वयं की ओर आकर्षित करने के लिए। ऐसे भगवान गोकुल में कभी शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करते। क्या कारण है? भगवान ने ब्रज में एक भी असुर को मारने के लिए शस्त्र अस्त्र धारण नहीं किया। क्या कारण था? क्योंकि असुरों को मारना एक गोपाल का बिजनेस नहीं। भगवान के अंदर जितनी भी सारी शक्तियां समाई हुई, विशेष करके संहार शक्ति, विष्णु शक्तियां, ये असुरों को मारने का काम करती, इसलिए उनको स्वयं भगवान का है। इसलिए भगवान ने, भले सारे असुर ने अपना साइज बढ़ाया, लेकिन भगवान ने कभी साइज नहीं बढ़ाया। कौन कौन से असुर ने साइज बढ़ाया? लगभग सभी असुर ने साइज बढ़ाया गोपाल को खत्म करने के लिए। लेकिन गोपाल ने किसी भी लीला में अपना साइज नहीं बढ़ाया। तो दैट इज द प्रूफ ही स्वयं भगवान। ए तेचाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान। एक लीला में साइज बढ़ाने का प्रयास किया। कौन सी लीला थी? अघासुरवध। लेकिन कभी बढ़ाए साइज? जब सारे ग्वाल बाल और बछड़े अघासुर के पेट में मर पड़े थे, उस समय भगवान ने ये प्रयास किया साइज बढ़ाने। लेकिन बाकी किसी भी लीला में भगवान ने साइज नहीं बढ़ाया। पूतना ने तो कितना बड़ा साइज बढ़ाया था? 12 मील। लेकिन पूतना को भगवान ने सिर्फ ओठों से मारा है, क्योंकि भगवान को असुरों को मारने के लिए शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान जानते हैं किस असुर की शक्ति किस में है। जैसे बकासुर किस रूप में आया था? पंची के रूप में। और पंची की ताकत चोंच में होती,
इसलिए भगवान ने दोनों चोचों को अलग करके बाइफरकेट करके उसको खत्म किया। घोड़े की ताकत मुंह में होती है, चना खा खा के शक्ति बढ़ाता है, इसलिए भगवान ने हाथ मुंह में डालकर अपना हाथ एक तप्त लोहे के समान बनाया, तो मल मूत्र त्यागते हुए आंखें बाहर आ गई उसकी। गधे के रूप में कौन आए थे? धेनुकासुर। और गधे की ताकत पिछले पैर में होती है कि नहीं? तो कृष्ण बलराम ने पिछले पैर पकड़ पकड़ कर घुमा घुमा के मारा है उनको, है कि नहीं? उसके बाद सांड की ताकत किसमें होती है? सिंग में। सिंग उखाड़ कर भगवान ने जैसे कपड़े धोता है धोबी, ऐसे धो धो के मारा है। इसलिए भगवान को शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान ने सारे जो भी अलग अलग पंछी के रूप में जानवर के रूप में आते उनको निर्माण किया। भगवान को मालूम है किस पंछी की किस जानवर की ताकत किस अंग में होती है, उसको पकड़कर उनको धोया है, उनको मारा है। तो भगवान ने पूतना को ओंठों से मारा है अभी, क्योंकि पूतना ने किसी जन्म में ये गजल गाई थी जो पंकज उदास ने गाई थी, ओंठों से छूकर मेरा गीत अमर कर दो। क्योंकि बोल पूतना के थे, उसको पूरे किए हैं भगवान ने। सचमुच अपने ओंठों से छूकर भगवान ने पूतना को अमर कर दिया, उद्धार कर दिया। तो आचार्य कहते हैं भगवान अपने ओंठों से भी 12 मील लंबी पूतना को मार सकते, कि भगवान के ओठ किसके समान काम करने लगे? एक वैक्यूम क्लीनर के समान। भगवान ने जब पूतना के स्तनों को अपना ओठ लगाया तो भगवान के ओठ वैक्यूम क्लीनर का काम करने लगे। वैक्यूम क्लीनर की विशेषता क्या होती है? जहां आपकी उंगली नहीं जा सकती, हाथ नहीं जा सकता कचरा निकालने के लिए, तो पाइप लगाए। तो भगवान ने अपना पाइप लगाया मुंह और मशीन शुरू किया और कचरा खींचने लगे। पहले विष को खींच दिया, बाद में दूध को, बाद में प्राण को, तो बच गई ममता। इसलिए उसको क्या स्थान देना पड़ा? तो अद्भुत लीला है पूतना की, है कि नहीं? देखिए आइटम जो भोग लगाने के लिए थी उसमें प्रॉब्लम था, भेष बदल कराई थी, और भावना गलत थी, भगवान को मारने के लिए थी। जबकि भगवान ने 9.26 में क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भावना सही होनी चाहिए, आइटम सही होना चाहिए, है कि नहीं? तीनों में प्रॉब्लम है। भावना में प्रॉब्लम है, भगवान को खत्म करने के लिए आई है। दूसरा क्या है? जो भोग लेकर आई है क्या था? आज तक कितने प्रकार के मिल्क सुने हमने? केसर फ्लेवर मिल्क, बादाम फ्लेवर मिल्क, और कौन कौन से? थोड़ा मुंह खोलिए। वेनिला, कैरामल, स्ट्रॉबेरी, रोज, दररोज, हर रोज। लेकिन आज तक कोई भक्त ने ये फ्लेवर का दूध ऑफर नहीं किया, पॉइजन फ्लेवर। वो सिर्फ लेकर आई थी पूतना, समझ गए? तो पॉइजन फ्लेवर दूध है, मिल्क है, भगवान को मारने के लिए आए और भेष बदल करे। जबकि भगवान के सामने भेष बदल कर नहीं आना चाहिए, हमारे मूल स्थिति में आना चाहिए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परोत। इसलिए हम डीटी वर्षिप में जाते हैं तो भगवान को स्पर्श कभी कर पाते हैं? जब बाहर के कमरे में बैठकर हम भूत शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं। और इसमें पहला श्लोक क्या है? भूत शुद्धि का पहला श्लोक क्या है? ना हम विप्रो ना हम इन्फोसिस। ना तो विप्रो में काम करता हूं ना तो इन्फोसिस। क्या बता रहे हैं? ना तो विप्रो में काम करता हूं ना तो इन्फोसिस में करता हूं। अगले 2 घंटे आपके कंपनी में काम करने के लिए आऊं। इस प्रकार हमारे मन की शुद्धि करके, भूत शुद्धि करके हम भगवान को स्पर्श। तो यहां तो भेष बदल कराइए। भेष बदलने पर भगवान पहचानने से इनकार करते हैं। जैसे रामायण में हनुमान जी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। किष्किंधा क्षेत्र में पंपा सरोवर में जब पहली भेंट हुई शाश्वत स्वामी और शाश्वत दास की, लेकिन उस भेंट में हनुमान जी को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन यहां तो गोपी का भेष लेकर आई, फिर भी भगवान ने उसका उद्धार क्यों किया? पूतना का वध नहीं हुआ है, उद्धार हुआ है। याद रखिए क्या विशेषता थी? क्योंकि पूतना माता ने ये भगवान की अंतिम आज्ञा गीता की पूरी की है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम।
सर्वधर्मान का मतलब है दो बड़े भाई अघासुर और बकासुर को त्याग कर, इसलिए पुतना का नाम क्या है? अहोबकियम। हाँ, अहोबकियम स्तन कालकूटम जिघांसया यद अपि असाधवी लेभेम गतिधात्री उच्चिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। तो दो बड़े भाई, बकी बकासुर की बहन, अगासुर की बहन, और कितना सुंदर फैमिली बिजनेस है। दो बड़े भाई और छोटी बहना मिलकर एक ही फैमिली बिजनेस चला रहे, गोपाल को कैसे खत्म करें। तो भगवान के परिवार के बिल्कुल अपोजिट है। भगवान के परिवार में भी दो भाई है, कृष्ण बलराम, और बीच में छोटी बहना है। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। इसके बिल्कुल अपोजिट परिवार पूतना का है। दो बड़े भाई और बीच में छोटी बहना पूतना। लेकिन बिजनेस क्या है? कैसे गोपाल को खत्म करे। तो भगवान ने पार्श्वभूमि देखी नहीं, फैमिली बैकग्राउंड देखा नहीं, फैमिली बिजनेस देखा नहीं। भगवान ने सिर्फ देखा, क्या देखा? खुद चल कर आइए, सारे असुरों को त्याग कर, कंस को त्याग कर, अपने भाइयों को त्याग कर, असुर परिवार को त्याग कर, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम, खुद चल कर आई है और कुछ लेकर आई है। सबसे बड़ी बात क्या है? हम भक्त बनने के बाद भी मंदिर आते तो खाली हाथ आते, लेकिन पूतना कुछ तो लेकर आई थी। समझ गए? इसलिए मंदिर आते तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कम से कम एक पत्ता लाना चाहिए, तो भगवान आपका पत्ता कट कर देंगे। तो खुद आई है, चल कर आई है, और भगवान के पास है, ब्रज में आई है। इसलिए मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, क्योंकि भगवान देखते हैं कोई जीवात्मा कई करोड़ों जन्मों के बाद कुछ देने के लिए तैयार है खुद होकर, तो भगवान बहुत ऋणी होते हैं। क्योंकि भगवान उस साधु के समान है जो साधु हर रोज एक स्त्री के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता, लेकिन बहुत ही गुस्से वाली थी, बहुत ही क्रोध वाली थी वो, हमेशा उस साधु को भगाती थी। लेकिन साधु आज ऐसे समय आए जब पति और पत्नी का झगड़ा जोर से चल रहा था। वो झगड़ा चल रहा था, फिर भी इसने जोर से आवाज दी, साधु ने दरवाजे पे खड़े कर, ओम भिक्षाम देही। तो इसको इतना गुस्सा आया, गुस्से में अपने पति का गुस्सा निकालने के लिए उसने रसोई घर में गई, रसोई घर से राख और अंगार साथ में लेकर आई और झोली में डाल के खाना, ले मर जा। तो साधु नाचने लगा, बल्ले बल्ले, कहने लगा माता बहुत खुश हूं, आज फिर से कल आऊंगा मैं। कहने लगे पागल हो गया तू। मैंने आपके झोली में क्या डाला देखा नहीं आपने? राख और अंगार डरे। तो कहने लगे आज तक आपने मुझे खाली हाथ भेजा था, आज से आपको भेजा गया है, इसलिए मुझे आपने राख और अंगार दिया है, कल मैं फिर से आऊंगा, क्योंकि कल अच्छी कोई चीज दे सकती हो आप, इस भावना से मैं जरूर कहूंगा। तो साधु भगवान कृष्ण, क्योंकि पूतना भी इस प्रकार भगवान को मारने के लिए आई थी, जैसे उस औरत ने राख और अंगार उस साधु के झोली में डाली, ऐसे पूतना भी भगवान को मारने के लिए विष लगा कर आई थी। भगवान क्या सोचने गए, कम से कम आज विष पिला रही हो, आगे जाकर दूध भी पिला सकती हो, इसलिए मैं आपको क्या स्थान दूंगा? आई का स्थान दूंगा, धात्री का। क्योंकि पूतना ने आज अपनी ईर्ष्या की सीमा को छलांग दिया, अपनी मत्सर्य की सीमा को छलांग दिया। तो भगवान भी कंपटीशन में उतर गए। भगवान जब कंपटीशन करते हैं तो जीवों के उद्धार के लिए, समझ गए? तो पूतना उतर गई थी द्वेष और मत्सर ईर्ष्या की सीमा को छलांग कर भगवान को खत्म करने के लिए विष लगा कर आई थी। लेकिन भगवान कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृपा के सिंधु, करुणा के सिंधु भगवान कृष्ण। आज पहली बार सिंधु का मतलब है सागर ने अपनी सीमा को छलांग दिया। सागर साधारणता अपनी सीमा को छलांगता नहीं, लेकिन इस पूतना उद्धार में भगवान ने सिंधु, कृपा के सिंधु, करुणा के सिंधु, इस सागर ने अपनी सीमा को छलांग दिया है। और भगवान कंपटीशन में उतर कर कहने लगे, माता आज तूने मुझे दूध पीने का मौका नहीं दिया, मैं भी तुझे किसी जन्म में दूध पीने का मौका नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, कम ना ज्यादा, ये है मेरा वादा।
कितनी सुंदर कॉम्पिटिशन करते भगवान, देखिए। क्योंकि पूतना स्पर्धा में उतर गई थी भगवान को मारने के लिए, ईर्ष्या से, ईर्ष्या की सीमा छलांग, लेकिन भगवान कंपटीशन में उतर गए। क्या कहकर? कितनी सुंदर भावना है भगवान की कि तूने आज मुझे दूध पीने का मौका नहीं दिया, किसी भी जन्म में तुझे दूध पीने का मौका नहीं दूंगा। मतलब क्या है? तेरा उद्धार करके रहूंगा। तो पूतना खुद आई है, चल कर आई है, भगवान के पास आई है, ब्रज में आई है, विष लेकर आई है। तो आई है, सिर्फ भगवान क्या देखा? आई है, ब्रज में आई है, खुद आई है, कुछ लेकर आई है, इसलिए आई बना दिया उसको। आई है इसलिए आई बना दिया। मराठी में क्या कहते हैं मदर को? आई, इसलिए। तो ऐसे भगवान अवतारी कृष्ण वो आते किस लिए है? अवतारी करे न प्रेम रस आस्वादन, उस प्रेम का रस आस्वादन करने के लिए। क्योंकि प्रेम के सामने ही भगवान हार जाते। प्रेम का स्वभाव चैतन्य चरितामृत में बताया है, कृष्णे रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, अपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रेम की ताकत क्या है? प्रेम भगवान को नचा सकता है, भक्त को नचा सकता है, और खुद दोनों के साथ नाचना शुरू करते हैं। इसलिए भक्ति इज ट्रायंगल। भक्ति ट्रायोलॉजी कहते हैं ना। तो ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 कोण होते हैं। ऊपर के कोने में भगवान होते हैं, दूसरे कोने में भक्त होता है, तीसरे कोने में प्रेम। तो प्रेम क्या करता है? भगवान और भक्त का हाथ पकड़कर दोनों को नचा सकता है। ये भावार्थ इस श्लोक का। कृष्णे रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, अपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। तो इस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने पहली बार अपने हृदय से एक स्त्री को निर्माण किया। राइट हृदय से, राइट को क्या कहते हैं हिंदी में? दाएं हृदय से एक स्त्री को निर्माण किया। प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप, करुणा की मूर्तिमान स्वरूप कौन है? राधा रानी। क्योंकि भगवान पुरुष है, पुरुष को स्त्री की जरूरत है, स्त्री को पुरुष की जरूरत है प्रेम करने के लिए। तो भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अपने हृदय से, दाएं हृदय से स्त्री को निर्माण किया है, वो है राधा रानी। और बाएं हृदय से पुरुष को निर्माण किया अपनी सेवा के लिए। वो कौन है? सेवक भगवान। कौन है? बलराम जी। लेकिन भगवान से हृदय से निकला हुआ ये प्रेम इतना गाढ़ा था कि भगवान उस प्रेम को समझ नहीं पाए। अभी कोई चीज है जो भगवान के समझ में नहीं आती। भगवान का नाम है सर्वज्ञ, अभिज्ञ सराट। क्या कहते हैं भगवान को? अभिज्ञ सराट। ऐसे अभिज्ञ सर्वज्ञ भगवान हर चीज को जानते हैं। वेद में, शास्त्र में, पुराण में कोई बात छुपी नहीं भगवान से। रही बात जीवात्मा से, जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए भगवान से कोई बात छुप नहीं सकती। इसलिए भगवान का नाम है सर्वज्ञ अभिज्ञ। लेकिन ब्रज में भगवान की हर एक उपाधि या योग्यता काम नहीं करती। कि ब्रज में प्रवेश करने से पहले यशोदा माई कहती है आपको सारी उपाधियां त्याग कराना है। ये श्लोक सिर्फ भक्तों के लिए लागू नहीं, आपको भी लागू है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ब्रज में प्रवेश करना है तो सारी उपाधियों को त्याग कर प्रवेश कर सकते हैं आप। हाँ, जो भी आपकी उपाधियां है, जो भी आपके क्या है कार्य है, सब त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य आपको ब्रज में प्रवेश कर, तभी ब्रज में प्रवेश मिलेगा। जैसे नरसिंह उपतपनी में, उपतपनी उपनिषद में बताया गया है, उग्रम वीरम। भगवान उग्र है लेकिन यशोदा माई के सामने बिल्ली के समान क्या होते हैं? कोमल हो जाते हैं, आवाज नहीं निकाल सकते यशोदा माई के सामने। तो उग्र नरसिंह भगवान कौन है? उग्रम। लेकिन यशोदा माई के सामने एकदम बिल्ली के समान बनते। उग्रम वीरम। वीर का मतलब क्या है? जो कभी रण छोड़कर भागता नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम है रणछोड़ राय। क्या नाम है? रणछोड़ राय।
तो रणछोड़ राय तो नाम किसने दिया है भगवान को? जरासंध नहीं, काल यवन ने दिया है। तो काल यवन ने भगवान का नामकरण किया रणछोड़ राय, लेकिन उसके पहले भी भगवान रण छोड़कर भागे दामोदर लीला में। जब भगवान ने देखा यशोदा माई के हाथ में छड़ी है, वो छड़ी को देखकर भगवान भागने लगे। तो रणछोड़ राय नामकरण काल यवन ने किया है, लेकिन बचपन में भगवान पहले यशोदा माई के सामने रण छोड़कर भाग गए। तो भगवान कौन है? उग्रम वीरम, वीर है लेकिन यशोदा माई के सामने भी रण छोड़कर भागते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु है, महाविष्णु लेकिन लघु विष्णु बनकर आते हैं ब्रज में। महाविष्णु का कोई काम नहीं ब्रज में। उग्रम वीरम महाविष्णु, उसके बाद सर्वतोमुखम, भगवान की नजर, भगवान की आंखें हर जगह होती है। लेकिन इस दामोदर लीला में यशोदा माई ने एक एक उपाधि निकाल कर रखी है, क्योंकि पिछले लीला में, मृद भक्षण लीला में भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया था। पिछले ही दिन लीला हुई थी, है कि नहीं? दामोदर लीला 9वां अध्याय, हाँ 9वां अध्याय, 8वें अध्याय में मृद भक्षण लीला आती है। उस मृद भक्षण लीला में भगवान ने पहली बार यशोदा माई को अपने मुंह में अपना ऐश्वर्य दिखाने का, अपनी भगवत्ता दिखाने का प्रयास किया, और माँ बेहोश हो गई। उठने के बाद माँ ने कहा, कल तेरी एक एक उपाधि निकाल के नहीं रखूंगी तो मेरा भी नाम यशोदा नहीं। इसलिए यशोदा माई दामोदर लीला में एक एक उपाधि उतारने के लिए लगी है। उग्रम है लेकिन यशोदा माई के सामने बिल्ली के समान म्याऊं म्याऊं कर रहे। वीर है लेकिन रण छोड़कर भाग रहे यशोदा माई को देखकर। उग्रम वीरम महाविष्णु है लेकिन लघु विष्णु बनकर आए। सर्वतोमुखम, अभी कैसे समझे इसको? कि भगवान जो हर दिशा में देख सकते, आज एक दिशा में देखने के लिए तैयार नहीं। कौन सी दिशा थी? यशोदा माई की तरफ पीछे मुड़कर। इसलिए गाना भगवान को लागू होता है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। समझ गए? क्योंकि मुड़ के देखते तो यशोदा माई आराम से पकड़ती। इसलिए उग्रम वीरम महाविष्णु, आगे क्या है? ज्वलंतम सर्वतोमुखम। तो इस प्रकार यशोदा माई आज क्या करे? भगवान की एक एक लीला उतारने में लगे। इसलिए भगवान इस प्रेम के भूखे थे यशोदा माई के। अरे यशोदा माई का प्रेम भी राधा रानी से आता है, क्योंकि राधा रानी कौन है? जगत जननी। जितने भी भक्त हुए हैं, होने वाले हैं और होकर रहेंगे, ये सारे भक्तों का प्रेम का स्तोत्र है राधा रानी, क्योंकि भगवान के हृदय से निकली है, करुणा की मूर्तिमान स्वरूप। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है? करुणा करुमयी। क्या नाम है? करुणा करुमयी। क्योंकि राधा रानी ने अगर भगवान को परमिशन नहीं दी होती, भगवान जब ब्रज को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो अंत में किसकी परमिशन दी है? राधा रानी की, यमुना किनारे। सोचे उस समय राधा रानी कहती, आप पूरा जीवन मेरे साथ बांसुरी बजाते हुए यमुना किनारे बैठ जाओ, तो भगवान को चुपचाप बैठकर बांसुरी बजानी होती है कि नहीं? क्योंकि भगवान कौन है? जोरू के गुलाम है, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन राधा रानी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर भगवान को परमिशन दी है। तो ये करुणा की सबसे चरम सीमा है, क्योंकि जिस भगवान के कहने पर राधा रानी भौतिक जगत में आई, राधा रानी को भौतिक जगत में आना नहीं था, लेकिन भगवान के कहने पर वो भौतिक जगत में आई। लेकिन जिसके कहने पर आई वही व्यक्ति हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, और कोई गारंटी नहीं कि फिर से इस जन्म में दोबारा मिलेंगे। तो इतना बड़ा विरह राधा रानी ने सहन किया है हम जैसे कलयुग के नमूनों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि भगवान ब्रज के बाहर नहीं जाते तो फिर से वो महाप्रभु बनकर नहीं आते, और महाप्रभु नहीं आते तो हम नहीं होते, यदि गौर ना होते। इसलिए राधा रानी की कृपा से हमें चैतन्य महाप्रभु मिले, राधा रानी के विरह के कारण, राधा रानी की भावना के कारण। समझ गए? इसलिए राधा रानी का नाम है करुणा की मूर्तिमंत स्वरूप, करुणा
इसलिए हमें प्रेम चाहिए भगवान को, तो हमें जीवों पे करुणा करनी चाहिए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ओ जीवात्मा मुझे सबसे प्रिय है जो मेरा ज्ञान दूसरों को बांटता है। 18वां अध्याय गीता का। क्यों प्रिय है? क्योंकि करुणा कर रहे हैं हम जीवों के प्रति। तो ऐसी करुणा से ओत पोत राधा रानी भगवान के हृदय से बाहर निकली है, प्रेम की मूर्तिमंत स्वरूप है। इसलिए भगवान उस प्रेम को समझ नहीं पाए, क्योंकि ब्रज का प्रेम इतना गाढ़ा होता है, मक्खन के गोले के समान। किसके समान है ब्रज का प्रेम? मक्खन का गोला। मक्खन का गोला बनता है दाने दाने से, और इस मक्खन के गोले में कितना भी अनमोल हीरा छुपा कर रखो, वो अपना तेज बाहर फेंक नहीं सकता। इसलिए ब्रज में किसी भी लीला में भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर पाए। समझ गए? क्योंकि ब्रज का प्रेम मक्खन के गोले के समान है। जैसे आपके घर के सामने पड़ोस में एक मुर्गा है जो रोज सुबह 2 बजे बांग देता है और आपकी नींद खराब करता है। तो उस मुर्गे को बंद करने के लिए, उसकी आवाज बंद करने के लिए अब उसको टोकरी के नीचे छुपा के रखते हो, तो टोकरी के नीचे छुपाने से वो बांग देना बंद नहीं करेगा। ऐसे भगवान का ऐश्वर्य कोई ढक नहीं सकता, जैसे मुर्गे को ढक नहीं सकते। समझ गए? वो तेज बाहर निकलेगा। इस तेज को ब्रह्म ज्योति कहाँ है, और इस ब्रह्म ज्योति की विशेषता क्या है? फिर से स्वयं भगवान क्यों कहा भगवान को? क्योंकि इनके शरीर से जो तेज बाहर निकलता है, इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? भौतिक जगत का नियम क्या है? कौन सा कलर लाइट को खींचता है और कौन सा कलर लाइट फेंकता है? ब्लैक कलर डार्क कलर खींचते हैं, और लाइट कलर लाइट बाहर फेंकते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान का सब कुछ उल्टा पुल्टा, इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल है। यद मुह्यंती सूर्या, स्वयं भगवान क्यों कहा है ब्लैक कलर, लेकिन कलर बाहर क्या फेंक रहे? तेज बाहर फेंक रहे। इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल है। समझ गए? भगवान है ब्लैकिश, श्याम वर्ण। श्याम वर्ण ब्लैक कलर ऑब्जॉर्व करना चाहिए लाइट को, लेकिन लाइट बाहर फेंक रहे इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल है। यद मुह्यंती ही सूर्या नमे विदु सुरगनाहा। तो ऐसे भगवान क्या किए? इस प्रेम को समझ नहीं पाए, क्योंकि ब्रज का प्रेम मक्खन के गोले के समान है। भगवान इसमें छुप गए थे। कितना भी अनमोल हीरा हो, मक्खन इतना गाढ़ा होता है, वो बिल्कुल जगह नहीं छोड़ता, दाने दाने में गैप नहीं होता, और इसलिए वो बाहर फेंक नहीं सकता तेज। और भगवान तो सबसे बड़े कोहिनूर हीरे। भगवान का मतलब ये ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्या शन्ना इति भगगना। ऐसे भगवान क्यों अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर पाए? इसका एक ही कारण है, ब्रज का प्रेम जो मक्खन के गोले के समान है। और इसके विपरीत द्वारका का प्रेम पिघलता घी है। पिघलते घी में कितना भी छुपाने का प्रयास करो, कोई नहीं रहा, घी के कारण और तेज बाहर निकलता है। समझ गए? और ये द्वारका का प्रेम है। तो बहुत सुंदर तुलना की है गौर गोविंद महाराज जी ने। हाँ, ब्रज का प्रेम मक्खन का गोला है और द्वारका का प्रेम पिघलता घी। तो इस प्रेम को भगवान समझ नहीं पाए। तो समझ नहीं पाए, इसलिए अगली समस्या बढ़ गई। अगली समस्या क्या जन्म ली? इस प्रेम की बराबरी नहीं कर पाए। और ब्रज में ये पहली बार भगवान का गीता का श्लोक फेल हो गया। ये तामाम प्रपद्यंती। भगवान क्या कहते हैं? जिस भावना से जीवात्मा मेरे पास आता है, उसके साथ उस भावना से मैं आदान प्रदान करता हूं। लेकिन पहली बार इस प्रेम का आदान प्रदान कर नहीं पाए। इसका मूल कारण क्या है? भगवान इस प्रेम को समझ नहीं पाए। अगर कोई चीज समझ में आती है तो बराबरी कर सकते हैं, इसका आदान प्रदान कर सकते हैं। वो बात समझ में नहीं आई तो क्या आदान प्रदान करेंगे? इसलिए भगवान इस प्रेम को समझ नहीं पाए, इसलिए इसकी बराबरी नहीं कर पाए, आदान प्रदान नहीं कर पाए। इसलिए तीसरा समस्या जन्म लिया। तीसरी समस्या क्या है? भगवान पे प्रेम का कर्जा चढ़ चुका।
इसलिए भगवान को इस प्रेम को समझने के लिए, इस प्रेम की बराबरी करने के लिए, इस प्रेम का कर्जा चुकाने के लिए फिर से आना पड़ा। क्योंकि भगवान ने राधारणी से पूछा, गोलोक में क्या पूछा? क्योंकि राधारणी भगवान की भी गुरु है। भौतिक जगत में भगवान सबके गुरु है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में राधारणी भगवान की गुरु है। तो शिष्यस्त्यम शादीमाम प्रपन्नम, हाँ, भगवान ने कहा कि मैं इस प्रेम को कैसे समझ पाऊंगा, इस प्रेम की कैसे बराबरी कर पाऊंगा, इस प्रेम का कर्जा कैसे चुका पाऊंगा। और चौथी चीज थी, भगवान को ये सबसे बड़ा रहस्य था, राज क्या है गहरा जानना था, कि नाम मेरा है कृष्ण। कितने अक्षर होते हैं कृष्ण में? 2.5 अक्षर होते। इस 2.5 अक्षर को भगवान समझ नहीं पाए। कृष्ण, ये 2.5 अक्षर का उच्चारण करके राधारणी भाव विभोर होती है, जमीन पे लोत पोत होती है। तो भगवान सोच ले, नाम मेरा है, लेकिन ज्यादा आनंद किसको मिल रहा है? राधारणी को। तो ये राज क्या है गहरा, वो भी प्रश्न भगवान ने किया। तो ये 4 प्रश्न के कारण भगवान को भक्त बनकर आना पड़ा। समझ गए? 4 प्रश्न क्या थे? प्रेम कितना गाढ़ा है, प्रेम को कैसे समझे, प्रेम की बराबरी कैसे करे, इस प्रेम का कर्जा कैसे उतारे, और ये नाम में मिठास क्या है। तब राधा ने कहा, जो द्वापर युग में गलती की है अपने भगवान बनकर आने की, वो फिर से मत करना। कि ब्रज में आप भगवान बनकर आए, सिर्फ ब्रजवासियों का उद्धार कर पाए, बाकी सारे ब्रह्मांड का उद्धार कर नहीं पाए। तो सारे ब्रह्मांड का उद्धार करना है तो आपको भगवान नहीं भक्त बनकर आना होगा। क्योंकि 4 ही सवालों का जवाब भक्त बनकर आओगे तो मिलेगा। इस प्रेम को समझना है, इस प्रेम की बराबरी करना है, इस प्रेम का कर्जा चुकाना है, और नाम की मिठास को चखना है, तो आपको भक्त बनकर आना। ये लाइन का मतलब है, अवतारी करे ना प्रेम रस आस्वादन। इतना गहरा मतलब है इस लाइन का। तो राधा रानी ने जब कहा कि मेरा हृदय लेकर, मेरी भावना लेकर, मेरा वर्ण लेकर जब आओगे, तो 3 चीजें मैं उधार में दूंगी आपको, उधार का सिंदूर। क्योंकि टेक्निकली देर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधारणी। गोपी भर्तुर पद कमले और दास दास अनुदास, भक्त रसामृत सिंधु। इसलिए भक्त का हृदय, भक्त की भावना, भक्त का वर्ण लेकर भगवान चैतन्य महाप्रभु है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। समझ गए? इसलिए महाप्रभु आए राधारणी का वर्ण। क्या है राधारणी का वर्ण? तप्त कांचन गौरांगी, गौरांगी का वर्ण लेकर आए। इसलिए इस कृष्ण को कलयुग में क्या कहते हैं? गौरांगा। तो ये कारण है गौरांगा नाम क्यों पड़ा। तो आश्चर्य की बात है, गौरांग महाप्रभु अपने नाम का प्रचार करना चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु ने गौरांग महाप्रभु का प्रचार किया। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगे नाम रे। भज गौरांगो लहो गौरांगो, कहो गौरांगे नाम रे। गौरांग भजे से हमारा प्राण रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लो गौरांगे नाम रे। हे जे जना गौरांग भजे से हमारा प्राण रे। है कि नहीं? नित्यानंद प्रभु ने गौरांग महाप्रभु का प्रचार किया, लेकिन गौरांग महाप्रभु ने कृष्ण का प्रचार किया। इसका कारण क्या है?
साधारणतः आदमी अपना प्रचार करते हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु ने कृष्ण का प्रचार क्यों किया? क्योंकि हृदय राधारणी का है, भावना राधारणी की है। क्योंकि राधारणी का एक नाम है कृष्णमयी, उनके अंदर और बाहर सिर्फ कृष्ण समाये हुए। उनके मुख से एक ही शब्द बाहर निकलता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हृदय राधारणी के लेकर आए तो हृदय से क्या निकलेगा? कृष्ण 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 ही निकलेगा। इसलिए जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश, ये कारण है। तो भगवान को अभी भक्त बनकर क्यों आना पड़ा? तो महाराष्ट्र के एक महान संत है जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है, तुकाराम महाराज। एक सुंदर श्लोक को अभंग कहते, उसमें वो कहते हैं, कमलनी काय जाने परिमल। कमल अपने मकरंद को, अपने मधु को जान नहीं सकता, ये भाव है उस अभंग का। क्यों? कमल में मधु बनता है, शहद बनता है, मकरंद बनता है, हनी बनता है, लेकिन कमल खुद मधु को चख नहीं सकता। लोग कितनी चर्चा करते हैं मधु की, हनी की, है कि नहीं? तो कभी कभी कमल की इच्छा होती है अपने मधु को चखना चाहिए, लोग इतनी चर्चा करें, इतना मीठा कैसे? लेकिन कमल अपने मधु को चख नहीं सकता, लेकिन इस कमल की तीव्रता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अंत में उस कमल को भ्रमर बनकर आना पड़ता है। क्या बनकर आना पड़ता है? ऐसे भगवान कमल के समान है, ये मधु निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि भगवान का एक नाम है सुधाकर। क्या नाम है? सुधा का मतलब है नेक्टर, निर्माण करने वाले। ऐसे भगवान भी कमल के समान है, उनके नाम में, गुणों में, लीलाओं में मिठास है कि नहीं? मधुर अष्टकम उसमें देखा, सुनते कि नहीं हम? हर एक अंग कितना मधुर है भगवान का, कितना मीठा है। ऐसे भगवान कमल के समान है, खुद मधु को निर्माण करते, लेकिन खुद नहीं चख सकते, क्योंकि वो भगवान बनकर आए थे। इसलिए भगवान को अभी राधारानी ने उपदेश क्या किया है, एडवाइस क्या दिया है? ये भगवत्ता छोड़कर, त्याग कर, भगवान बनने का प्रयास छोड़कर, कलयुग में जब फिर से आप भक्त बनकर आओगे, मेरा हृदय लेकर, मेरी भावना लेकर, मेरा वर्ण लेकर, तब जाकर आप इस प्रेम को समझ पाओगे, इसकी बराबरी कर पाओगे और इसका कर्जा उतार पाओगे। किसके माध्यम से? ये 16 शब्दों का वितरण करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कमलनी काय जाने परिमल। या दूसरा उदाहरण देते तुकाराम महाराज इसी अभंग में, कि गैया का दूध बहुत मीठा होता है, देशी गैया का, विशेष करके गिर गाय का, उसमें शक्कर भी डालना नहीं पड़ती, इतना मीठा होता है। इसलिए 120 रुपए लीटर है बंबई में। कितना? 120। तो गैया कभी कभी सोचती है, इस्कॉन वाले 120 रुपए देकर इतना दूध क्यों खरीद रहे? कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, इसमें मिठास होनी चाहिए। तो गैया कभी कभी प्रयास करने, क्या करते हैं, प्रयास करती है अपने दूध की मिठास को चखने का, लेकिन दया खुद अपने दूध नहीं पी सकती। कितना भी मुंह पीछे लेकर जाए, साधारणतः वो अपने आंचल तक नहीं पहुंच सकती, और एक भी बूंद उसके मुंह में नहीं जाएगी। भले गोल गोल घूमती रहेगी पूरा जीवन, एक भी बूंद उसके मुंह में नहीं जाएगी। लेकिन गैया की तीव्रता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक दिन गैया को क्या बनकर आना पड़ता है? बछड़ा बनकर आना। ऐसे भगवान को भक्त बनकर आना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान के आने का कारण यहां पर बताया कि भगवान कलयुग में क्यों आते हैं। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्रनंदन, अवतारी करे न प्रेम रस आस्वादन। तो साधारणतः भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 2800 युग में आते। कौन से? 2800। तो ब्रह्मा का एक दिन कितना है? 1000 दिव्य युग। एक दिव्य युग का मतलब कितना है? एक दिव्य किससे बनता है? 4 युगों का मिलन एक युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो एक दिव्य युग 4 युगों से बना है। ऐसे 1000 युग में 28 युग में भगवान आते। समझ गए? लेकिन बाकी 999 युगों में भगवान खुद नहीं आते, इसलिए उनको स्वयं भगवान का ये ते चाम सकलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
और बाकी 999 युगों में साधारण संकीर्तन होता है। कौन सा? जो विष्णु आते हैं, नारायण आते हैं अवतार के रूप में, उस युगों में 999 युगों में संकीर्तन का है। लेकिन भगवान जब भक्त के रूप में आते, 28 युगों के बाद कलयुग जो आता है, उसमें जो भगवान आते हैं, उसमें जो कीर्तन करते हैं उसको प्रेम संकीर्तन कहा है। जैसे पुना वालों ने 5 दिन प्रेम संकीर्तन किया था, लेकिन उसका मतलब क्या है प्रेम संकीर्तन का? उसको प्रेम संकीर्तन क्यों कहा है? बाकी 999 युगों में कीर्तन का है, संकीर्तन। लेकिन भगवान जब खुद भक्त के रूप में आते हैं और वो जो कीर्तन करते हैं संकीर्तन, उसको क्या कहें? प्रेम संकीर्तन। क्या करने? क्योंकि इस प्रेम को समझना था, इस प्रेम की बराबरी करनी थी, इस प्रेम का कर्जा चुकाना था, और इस प्रेम को वितरित भी करना था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसलिए इसको प्रेम संकीर्तन करें, साधारण कीर्तन नहीं। क्या है? जीवों को प्रेम देने के लिए। इसलिए अनअर्पित मतलब क्या है? आज तक ये प्रेम किसी नारायण ने, विष्णु ने, कृष्ण ने भी नहीं दिया, वो देने के लिए अनअर्पित। चिरम चिरात करुणो अवतीर कलो। नमो महावदने का मतलब ये है, आज तक किसी अवतार ने उदारता से ये प्रेम नहीं दिया, ब्रज का प्रेम। क्योंकि एक ही प्रेम भगवान को खरीद सकता है। हाँ, अनन्य प्रेम, केवला भक्ति, प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, हाँ, ब्रज भक्ति, राधिकेर भक्ति, गोपीकेर भक्ति। एक ही भक्ति भगवान के करीब पहुंचने के लिए मदद करती है। भक्ति के 84 प्रकार होते हैं। कितने? 84। उसमें से 83 प्रकार की भक्ति मिश्र भक्ति कहलाती है। और ये मिश्र भक्ति भगवान के करीब पहुंचने नहीं देती। एक ही भक्ति है जो भगवान के करीब पहुंचने देती है, भगवान के अपने हाथ का खिलौना बनती है, भगवान को खरीद सकती है, नचा सकती है, पकड़ सकती है, बांध सकती है। वो है अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, गोपी केर भक्ति, राधिकेर भक्ति। तो इस प्रेम को समझने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रेम संकीर्तन। इसलिए कल हम देखेंगे कि इस भगवान की विशेष अवतार में भगवान किस प्रकार इस नाम की मिठास को खुद चखते हैं और दूसरों को कैसे बांटते हैं। इस मिठास नाम में की मिठास कितनी है, ये कल से विषय हम शुरू करेंगे। अगली बार जो भी क्लास होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने एक श्लोक को लेकर उसका स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया। श्लोक क्या था? चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 265। अन्य का कथा आपने ब्रजेंद्र नंदन, अवतारी करे न प्रेम रसास्वादन। तो इसका मर्म क्या है श्लोक का, ये समझ गए तो भगवान के आने का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा होगा। तब महाप्रभु को हम गंभीरता से लेंगे। भगवान को क्या पड़ी थी? अपना धाम छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, गैयों बछड़ों को छोड़कर, ग्वाल बालों को, गोप गोपियों को छोड़कर आने की जरूरत क्या थी? तो भगवान कितने तरसते इस नाम की मिठास को चखने के लिए, तो हमें कितना तरसना चाहिए। ये तड़प ही हमें भौतिक जगत से बाहर निकाल सकती, क्योंकि नाम रुचि बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। कि आध्यात्मिक जीवन का सार क्या है? नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। पहली चीज प्राप्त नहीं कर पाए नाम रुचि, तो अगली चीज क्या है? जीव दया नहीं, जीव दया। इसलिए महाराज जी का एक बहुत सुंदर लेक्चर है, अगर हर रोज एक बार सुनना चाहिए। 40 मिनट का लेक्चर है बेनापुर का। हाँ, नाम रुचि इज एवरीथिंग। 40 मिनट्स का है। हरिदास ठाकुर के स्थली पे महाराज जी ने लेक्चर दिया है। जब सारे ब्रह्मचर्य मिलकर टीएमसी लोग गए थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल। अगर ये चीज मिल गई तो आपके जीवन में कुछ कमी नहीं होगी। हमारे जीवन में सिर्फ कमी है नाम रुचि की। तो इसको लेकर हम कल चर्चा शुरू करेंगे। नाम में कितनी मिठास है, भगवान का नाम कितना मीठा है। शास्त्र में अलग अलग जगह इस मिठास की चर्चा की गई है, उसको लेकर, और भगवान का नाम कितना मीठा है और इस मिठास को हम क्यों चख नहीं पा रहे, विषय होगा। जब भी अगला प्रवचन होगा उसमें हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण। प्रश्न उत्तर अंत में रखेंगे क्या भी? आइए प्रयास करेंगे, इतने बड़े तो विद्वान नहीं है। सबको अच्छा लगा टॉपिक कि नहीं? तो जिनको डायबिटीज है वो बैठ नहीं सकते क्लास में। क्योंकि इतना मीठा खिलाएंगे तो क्या होगा। कितना मीठा है भगवान का नाम। नींद आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इन शब्दों को जितना खाते हैं भगवान के 16 शब्दों में से जितने शब्द खाते हैं उतनी ज्यादा नींद आएगी। कि भगवान का एक नाम हरे कृष्ण राम एक एक काला गुलाब जामुन के समान है। और कई भक्त लोग एक महामंत्र में 8-8 शब्द खाते हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। तो 8 गुलाब जामुन खा रहे हैं तो नींद क्यों नहीं आएगी? इसलिए मीठे शब्दों को खाइए मत, उनको उच्चारण करके सुनिए, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न? So, came in 28th, it was 28th Manvantara or 28th Yuga in मनवंतर Bhagavad. ना, युगा, युगा साइकिल में, हाँ युगा साइकिल में। अभंग में तो 28 बोला है ना, 28 है, 22 सेवंथ मनोरा 7 चौक 28 बराबर है। ठीक है, हाँ प्रश्न। अभंग क्या हो? 28 युगे उभे उठेवरी। You are telling about Prem Sankirtan. So, like when we hear this, it is very nice, but it appears that we are very far, and this appears to be theoretical या या to reach this stage, or almost impossible maybe in this life. इम्पॉसिबल बट नॉट डिफिकल्ट। देखो, अगर आकाश को छूना है तो कम से कम छत को छूने का प्रयास करें। वी शुड बी नोइंग द स्टैंडर्ड, क्या देने के लिए है। छू नहीं सकते इसका मतलब क्या, हमें उसको नीचे नहीं लाना है, स्टैंडर्ड को कम नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है रहेगा। कमियां हम में है तो कमियां क्या है चर्चा करेंगे इसके बारे में, उससे कैसे ऊपर उठना है वो भी बताएंगे। तो स्टैंडर्ड नहीं बताएंगे, उस पहुंचने के लिए क्या तरीके बताए वो भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अभी तो शुरुआत हो गई, श्लोक चर्चा किया हमने, इसके आगे होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। यस प्रभु। Said that Lord comes in the once in a day of Brahma. So Brahma lives for 100 years. So in every day the Lord comes. So like Chaitanya Mahaprabhu came to taste the love of Lord in this particular uh, Manvantara, particular Yuga. So in the next day of Brahma, will when Krishna will come, Shri Chaitanya Mahaprabhu will again come to taste that love. Yeah. Whenever Krishna comes personally, next Kali Yuga. Next day of Brahma. Yeah. So Chaitanya Mahaprabhu will also come. So once he has tasted, again he will come to taste. Once he has tasted, so again he will come to taste in the next day of Brahma. Yeah. Because he wants to teach us by his own example. It's not that he's performing lila. So how to taste that, how to understand the love, he comes as a teacher, Acharya. He's performing the role of Jiva. Means in that role he is coming just to teach us how to reach that. Okay? Why in other yugas, when like other incarnations come, so why they don't give the Prem Sankirtan? Why only once in a day of Brahma? Because particularly he has come to understand that prem, to reciprocate with that prem. हाँ, और वो कर्जा उतारने के लिए आए। So for this reason, he has come to understand, to reciprocate and to fulfill that debt. He has come. That's why it's called Prem Sankirtan.
बाकी युगों में भगवान कृष्ण खुद नहीं आते तो प्रेम का कर्जा नहीं चढ़ता, इसलिए उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए? तो साधारण संकेत होती। लेकिन इस पर्टिकुलरली स्वयं भगवान जब आते, ये चाम सकल कृष्ण गोविंद, उनके बाद में जो कलयुग में आते हैं खुद भगवान आते हैं, क्योंकि आते समय राधा रानी का हृदय, भावना और वर्ण लेकर आते हैं, उस प्रेम को समझने के लिए आते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु। every sampradaya he visited, Sri Sampradaya, Madhava Sampradaya, and even Tikoram and other. When Lord Chaitanya went to Vrindavan, he asked, I want to just know, is there any connection to Haridas or like Sri Banke Vihari? Banke Vihari, have he visited or like any connection? का है कुछ रेफरेंस? कभी सुना तो नहीं, सुना नहीं, कभी सुना नहीं हमने इसके बारे में। किसी को पता है बांके बिहारी मंदिर गए थे कि नहीं? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री